coding. Okay, which topics we had covered up to now? अब तक हमने कितने कितने टॉपिक्स कवर किए यूनिट 1 में? यस, प्लीज स्टूडेंट जल्दी से. यस, चलो जल्दी बताओ. विच टॉपिक वी हैड कवर्ड अप टू नाउ? हम CLR कैसे वर्क करता है वो, फ्रेमवर्क, बेस क्लास लाइब्रेरी, ASP.NET, classes, methods, very good. Inheritance. Yes. Okay, so in the .NET AWP subject, advanced web programming, we had covered first of all what is .NET. Okay, .NET, the full form of .NET is network enabled technologies. Network enabled technologies. Okay, then we had covered what is .NET framework. The .NET is a platform, not a language. Okay, that we had also covered. .NET is a framework or platform. It is not a language, but under the .NET framework, we can create multiple, different types of application with the different types of languages. Okay, so .NET is a framework or platform, not a language. Then next we had covered the types of applications. Okay, which type of application we can create under the .NET framework. So we can create web applications. Web applications means the applications which will run in the browser. Okay, the applications which require the browser for running, that type of application also we can create. Okay, websites, then any online applications, all are comes under this category. Then we can create the web services. Okay, we can also create the web services. Services means protocols वगैरह. ठीक है, जो protocols है, the protocols are one type of services which we are using for our for example, HTTP is a protocol. It is used to transfer the transfer our request to the server, and server will respond to our request. Okay, then FTP, file transfer protocol. If you want to transfer your file in the network, then FTP protocol is used. SMTP, okay, simple mail transfer protocol. So all are comes under the service, web services. Okay, web services. So you can also create the web services. Then Android applications also you can create. Then console applications. Console applications means kya? Applications which will run in the output of that application will comes in the command prompt window. Okay, kahan pe aayega? Command prompt window mein aayega. We cannot design in the console application. We can design in the web application. In web services also we can design, but in the web application, console application we cannot design. Okay, console application हम लोग design नहीं कर सकते. When you are open the कमांड, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो आपके सिस्टम में यूज ओपन करोगे, देन यू कैन नॉट फाइंड एनी डिजाइनिंग वगैरह, उसमें कुछ तो नहीं मिलता. यू हैव टू राइट दी कमांड. फॉर एग्जांपल IP config, आप कमांड यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दी IP एड्रेस ऑफ योर सिस्टम. ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट इज बेस्ड ऑन फुल्ली कमांड, इसके लिए उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट. तो अगर आपको ऐसे टाइप के एप्लीकेशन कुछ इफ यू वांट टू क्रिएट, तो यू कैन आल्सो क्रिएट इन दी .NET फ्रेमवर्क. Then class libraries also you can create. Okay, class libraries आप create कर सकते हो. Then languages. Okay, .NET supports multiple languages. Okay, Python हो गया, C++, C नहीं, C is a procedural language. It is an old language. C++, Java, JavaScript. Okay, VB. Okay, the .NET supports multiple languages, but in our syllabus we have to learn C# language. So we have started the introduction about the C# language in the previous lectures. Okay, we had covered the topics about the C# language. Okay, then we had covered also .NET framework in detail. Okay, which are the facilities are provided. Okay, HCL हो गया, then CLR, ADO.NET. Okay, all are the facilities provided by the .NET framework. Okay, so CLR, how the CLR work वो हमने details में देखा. The function of CLR is convert the source code into the native code. Native code मतलब machine code. Okay, source code means your program. .NET understand only IL language, intermediate language. Okay, तो Java जो भी language का compiler है, तो compiler will convert source code into the IL code, intermediate language code. Okay, MSIL code, Microsoft Intermediate Code. Then JIT compiler, just in time compiler, convert the MSIL code into the machine code.
ओके तो ये हमने डिटेल्स में पढ़ा हाउ द सी लेवल वर्क्स. देन वी हैड स्टार्टेड द C sharp language. The C sharp is an object oriented language. Okay, C sharp is an object oriented language. Then it is a case sensitive. Okay, C sharp is a case sensitive language. So जो small है तो वो small में ही लिखना है. जो capital है that you have to write in the capitals. Okay, the keywords almost in the small letters में है तो आपको common है. You should remember. Then every sentence will ends with the semicolon. ठीक है, आपको थोड़ा याद रखना है. Then we had covered the looks conditional statements. We had covered conditional statement में same है if else वगैरह. ठीक है, there is no change in the conditional statement. Then looks, the looks is also same but there are one more advanced loops है in the C sharp language, that is for each loop. ठीक है, वो for each loop आपको याद रखना है. What is the use of that for each loop? The for each loop is used to access the array elements. That we had also covered with the एक small example. हमने हर एक concept के लिए मैंने आपको एक small example प्रोवाइड किया है. ठीक है, टुमारो या तो फिर डे आफ्टर टुमारो हम प्रैक्टिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो उसमें दिखाऊंगी. आई विल शो यू. ठीक है, देन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द इनहेरिटेंस. ओके, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दैट आल्सो वी हैड कवर्ड. to how to create class, how to create objects. Okay, what is a method? Okay, what is a method, what is function? Method and function both are the same. Data members, variables, fields, the three are the same. Okay, so you should remember all these things. Then we have started inheritance. Okay, what is inheritance? You know. Okay, so single inheritance हम लोगों ने cover किया था in the last lecture. Yes. Now मैंने आपको एक question दिया था. I gave you one question to find. Okay, find here which type of the inheritance are supported in the C sharp language. या तो types of inheritance in the C sharp language. देखा किसी ने, पढ़ के आयो? Yes or no? Yes or no? Types of inheritance in C sharp language. और नहीं तो फिर you can also find, ऐसे भी find करना था कि which type of inheritance C sharp language is not supported. कोई किसी ने find किया है कि नहीं? Yes or no? एक ही इतना ही questions मैंने दिया था, वो भी आपको नेट पे से सर्च करना था. कोई नहीं? आस्तिक, शाहजाद, शोएब, रुतिका, कीर्ति. कितना टाइम लगता है सर्च करने में? श्रुति, साकिब, राशिद. एक ही क्वेश्चन दिया था, उतना ही 2 मिनट का भी काम नहीं था. You require hardly 2 minutes. Okay, चलो छोड़ो. Okay, in the last lecture we had covered this. Yes, इसने रिप्लाई किया है, देखते हैं. मल्टीपाथ. मल्टीपाथ क्या है? सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? Multipath, you have written the multipath in the chat box. So what is multipath? It is supported or not supported? Mohif? Yes, student, please be active. इतना छोटा सा क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को दिया था फाइंड करने के लिए. Then how will do the programs? Programs कैसे करोगे फिर? This is a practical, fully practical subject. So you have to be active. Otherwise तो नहीं चलेगा फिर. ऐसे भी कंसेप्ट सबका इतना ये है, वीक है. नहीं करता. Okay, good. Okay, yes. So in the last lecture, single level inheritance, we had covered this program. Okay, now multiple inheritance. Okay, multiple inheritance is not supported by the C sharp language. Multiple inheritance is not supported by the C sharp language. ठीक है, multiple types जो inheritance है वो C sharp language support नहीं करता. Instead of that,
C# language has interface. Okay, interface है. If you want to create the multiple inheritance, then you have the interface concept you have to use. Okay, ये I think Java में भी वही था. Java में भी multiple inheritance support नहीं होता है. Correct ना? बरोबर है ना? Java support करता है multiple inheritance. Yes or no? Java is supported multiple inheritance. Yes or no? See students, all these are the common questions. As a IT student, you should know. नहीं करता है. Okay, नहीं करता है. Yes. जो multiple inheritance that is not supported by Java and it is also not supported by the C# language. ठीक है, वो भी C# language भी support नहीं करता. I will ask these questions. ये सारे common questions मैं पूछूंगी MCQ exam में. So you should remember and please note down all these जो main concept है. Please note down कर कोई एक line में ही you should write. Okay, तो please ऐसे फिर बोलना मत कि मैम ये सिलेबस में नहीं पढ़ाया था कि ऐसे कुछ नहीं है. I can ask any type of question because it is a programming language. Programming language है. हर एक लाइन से MCQ निकल सकता है. ठीक है? तो please be active in the class and थोड़ा खुद से भी किया करो. Now you are in the TY में हो. ठीक है? तो आपको थोड़ा efforts ज़्यादा डालना पड़ेगा. All subjects are very interested in the 5th semester. सारे सब्जेक्ट एंड एवरी सब्जेक्ट हैज मीनिंग. मैंने आपको पहले बोला हर एक सब्जेक्ट के लिए एक मीनिंग मतलब है. आपको उसके लिए जॉब अवेलेबल है इन दी मार्केट. इफ यू हैव दी गुड पावर इन दी कोडिंग में पावर है तो यू कैन, मैंने ये लास्ट लेक्चर भी आपको बताया था, तो यू कैन वर्क एज अ डेवलपर. ठीक है, अगर अभी SPM प्रोजेक्ट नाउ यू आर स्टडीइंग ना इन दिस सेमेस्टर. अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा है तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर सकते हैं. यू विल गो फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर भी जा सकते हो फॉर एनी कंपनीज के लिए. तो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ आपको जॉब्स अवेलेबल है इन दी मार्केट में. वो आपको हर एक सब्जेक्ट्स पढ़ना है अच्छे से. यू हैव टू क्लियर ऑल दी कंसेप्ट्स. इंटरव्यू में जाओगे तो बेसिक क्वेश्चंस यू शुड नो. यस, ऐसे ही क्वेश्चंस होता है फेस करना इंटरव्यू. आपको यही पूछेंगे. आपको पूछेंगे अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द .NET वाइवा के लिए जाओगे, सॉरी वाइवा नहीं, इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, तो दे विल आस्क सेम क्वेश्चन. यही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस. बेसिक्स क्वेश्चन तो यही रहता है. ओके, मैंने भी 2-3 इंटरव्यू दिया है. दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं. व्हाट इज CLR, हाउ दिस CLR वर्क्स, देन व्हाट इज इनहेरिटेंस. ऐसे बेसिक ही क्वेश्चन है, बट एट दैट टाइम हमको याद नहीं आता. ठीक है, तो आपको हर एक चीज यू शुड रिमेंबर. इसीलिए बोलती हूँ नोट डाउन करके रखो. तो और हर एक लैंग्वेज जो भी आप पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखने का इन दी वन लाइन. एट द टाइम ऑफ अगर आप इंटरव्यू भी जा रहे हो तो आपको जल्दी फटाक से एक बार रिवीजन कर लिया और देख लिया तो हो जाएगा. नॉट ओनली फॉर दिस ईयर सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे ही भी मैं बोल रही हूँ. ठीक है, चलो छोड़ो. Okay, the C now next is a multi-level inheritance is supported. Okay, multi-level inheritance support करता है C# language, but multiple is not supported. There is a difference between multi-level and multiple inheritance. In the last lecture we had covered the single inheritance. Okay, हमने ये example भी देखा. What is inheritance का sign? The column. Okay, child class, then column, then the super class. Okay, or base class. Okay, and then multi-level inheritance when one class inherits another class which is further inherited by the another class. It is known as multi-level inheritance. Okay, inheritance is transitive so that the last derived class acquires all the members of all its base classes. Okay, ये you should remember this line. क्या लिखा है? Inheritance is transitive. Okay, transitive है. What is the meaning of transitive? What is the meaning of transitive? Okay, चलो. मतलब if A equals to B and B equals to C, then A equals to C. Yes. Okay, very good. Okay, तो सेम रूल सेम जो है वो अप्लाई होता है फॉर द क्लासेस के लिए. ठीक है, जो लास्ट क्लास होगा वो क्या करेगा, प्रीवियस उसके जो प्रीवियस क्लास है उसका भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा. उसके भी पहले मतलब वो हर एक क्लास जितना भी हमने ऊपर हर एक क्लास डिफाइन किया है पेरेंट क्लासेस के लिए, जितने भी पेरेंट्स क्लासेस है, इट विल इनहेरिट ऑल दी मेंबर्स ऑफ बेस क्लासेस. तो यही उन्होंने लिखा है, इनहेरिटेंस इज ट्रांजिटिव so that the last derived class acquires all the members of all its base classes. Okay, multi-level inheritance. What is multi-level inheritance? When one class inherits another class which is further inherited by the another class. मतलब एक base class, then उसके लिए एक child class, then वो child class के लिए another हम लोग सब class create करते, then child class, that child class will become the
parent class for its class. ठीक है, examples हम लोग देखते हैं, then you will get the clear idea. Yes, see, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हमने देखा. सिंगल लेवल में एक ही सब क्लास होगा. देयर इज ओनली वन सब क्लास, ओके, दैट इनहेरिट्स द ऑल द मेंबर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास. ठीक है, तो सिंगल में एक ही होगा. मल्टी लेवल में यू कैन क्रिएट मल्टीपल बेस क्लासेस. ओके, यहाँ पे देखो, लेट्स पब्लिक क्लास एनिमल. ओके, दैट इज ये आपका मेन सुपर क्लास, और you can say parent class. ठीक है, then in this class we have defined the method public void method. It public void it is a method. It क्या है, यहाँ पे method है. ठीक है, मतलब function. Method and function both are the same. Public void it, this is a method. जब हम लोग ये brackets आता है ना open and close, तो वो क्या हो जाता है हमारा method. ठीक है, तो public void method it, sorry, it is a method name, then bracket open किया है, then in that method में क्या specify किया है, console.writeLine eating. console.writeLine eating मतलब whenever we call this it method. ठीक है, जब हम लोग ये it method को कॉल करेंगे तो what will be display, eating ऐसे डिस्प्ले होगा. ठीक है, कौन से क्लास में वो it method, in the animal class में. animal is a class, it is a method. Okay, when we call this method, the eating statement will be printed. Okay, it is a सुपर क्लास. ठीक है, बेस क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास बोथ आर सेम. इसलिए मैं हर एक वर्ड्स आई एम यूजिंग हियर. मैं एक ही वर्ड यूज नहीं करी सुपर क्लास. आप सुपर क्लास को बेस क्लास भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार अलग अलग वर्ड यूज करूँ कि आपको समझ में आए. मेथड्स एंड फंक्शन बोथ आर सेम. यस, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रिएटेड अनदर सब क्लास. ओके, पब्लिक class dog. Okay, public class dog, this is another class. That class inherits the animal class. कौन से क्लास इसको इनहेरिट करा है, एनिमल क्लास. ठीक है, तो डॉग कौन सा हो गया, नाउ चाइल्ड क्लास. ओके, डॉग इज अ क्लास नेम, वो कौन सा हो गया, चाइल्ड हो गया. किसके लिए चाइल्ड हो गया, एनिमल के लिए. ठीक है, एनिमल क्लास के लिए डॉग इज अ चाइल्ड क्लास हो जाएगा. ठीक है, तो वो डॉग दैट इज अ क्लास दैट इनहेरिट्स द एनिमल क्लास. ठीक है, नाउ डॉग क्लास में कौन सा मेथड वी हैव डिफाइंड, बार्क, BARK, बार्क मेथड मतलब फंक्शन. ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन. मेथड मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन. पब्लिक वॉइड बार्क, बार्क इज अ मेथड. ठीक है, इन दैट मेथड क्या डिफाइन किया हमने, बार्किंग. ओके, व्हेन दिस मेथड विल कॉल, द बार्किंग स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले. क्लियर, व्हेन वी कॉल दिस मेथड द बार्किंग स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले. हियर वी आर क्रिएटिंग द मेथड. फंक्शन हमने क्रिएट किया, जैसा एज यूजुअल क्रिएट करते हो. द फर्स्ट आइडेंटिफायर, देन डेटा टाइप. ओके, वॉइड है मतलब वो कोई रिटर्न नहीं करेगा, ओनली वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा. इफ यू आर रिटर्निंग एनी वैल्यू देन यू हैव टू स्पेसिफाई अ इंटीजर, फ्लोट, जो आप रिटर्न करवाओगे यू हैव टू राइट हियर. ठीक है, पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर. पब्लिक मींस आप ये मेथड को कहाँ पे भी कॉल कर सकते हो. प्राइवेट करोगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, यस, नाउ नेक्स्ट वी हैव आल्सो डिफाइन अनदर एक सब क्लास बनाया, बेबी डॉग. ठीक है, बेबी डॉग इज अनदर सब क्लास. ओके, सब क्लास एक बनाया दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी from the dog class का वो प्रॉपर्टी है. नाउ फॉर दिस बेबी डॉग, द डॉग इज अ सुपर क्लास, बेस क्लास हो जाएगा, एंड बेबी डॉग इज अ चाइल्ड क्लास हो जाएगा. ठीक है, दैट इनहेरिट्स कौन सा प्रॉपर्टी इनहेरिट्स करे, डॉग क्लास का. ठीक है, मतलब नाउ दिस बेबी डॉग हैज टू मेथड्स. ओके, तो सॉरी 3 मेथड्स, विप, देन बार्क एंड देन इट्स. मतलब बेबी डॉग हैव 3 मेथड्स. ये क्लास का 3 मेथड्स वो इनहेरिट करेगा. एक तो डॉग क्लास का, तो डॉग क्लास में बार्क है, एंड डॉग क्लास आल्सो सपोर्ट द इट मेथड्स वो सब मतलब इनहेरिट करें. तो जब हम लोग ये कॉल करेंगे देन बार्क एंड इट एंड विप, ये तीनों मेथड्स विल बी डिस्प्ले. ओके, इन द विप मेथड हमने क्या किया, द console.writeLine विपिंग विल बी प्रिंटेड. ओके, सो वन पेरेंट क्लास, एक सब क्लास चाइल्ड क्लास, दिस इज अनदर चाइल्ड क्लास. ओके, यस, नाउ दिस इज अ मेन क्लास. Okay, this is a main class, public static void main. Okay, you can directly write the main. Otherwise, you can also write within any class. Then here what we are doing, we are creating the object, D1 object. For which class? Baby dog class. For which class? Baby dog class. So baby dog class name, create the object. Take a D1 is the object. Again, it is a identifier. You can create any object, कोई भी नाम you can assign here. Give here equals to new baby dog. Okay. Now using that object, okay, using that object, D1 object, we can call every methods. Okay, D1.it, D1.bark, D1.whip. Why? Because inheritance यहाँ पे हो रहा है, multi-level inheritance. Which type of inheritance? Multi-level inheritance. Clear? We have created only
ऑब्जेक्ट ऑफ बेबी डॉग क्लास, जो लास्ट क्लास हमने डिफाइन किया है, ठीक है, बेबी डॉग, उसका ही वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, उसका ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है D1 एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वी हैव कॉल the methods of all the classes. Clear? So this is a multi-level inheritance. This is one class, this is second class, this is third class. तीनों क्लास है, बट तीनों क्लास का मेथड्स वी आर कॉलिंग यूजिंग ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, मतलब डॉग जो है क्लास, डॉग क्लास सपोर्टेड द बार्क मेथड एंड ऑल्सो इनहेरिट द इट. मतलब अगर इफ आपको डॉग क्लास में अगर यू हैव टू मेक द इट फंक्शन मेथड आपको बनाना, तो आपको अगेन अगर उसको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, रीयूजेबल, रीयूज हो रहा है. तो इट मेथड आपको अगर बेबी डॉग क्लास में अगर बनाना है तो आपको अगेन उसको बनाने की जरूरत नहीं. आपने एक बार उसको मेन क्लास में बनाया, मतलब सुपर क्लास में बनाया, तो यू कैन inherit that methods using the inheritance. Okay, this is called the multi-level inheritance. कौन सा inheritance हो गया? Multi-level inheritance. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Now अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये inheritance हम लोग हर एक लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे? तो when you will make the projects, okay, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब इस सेमेस्टर में यू हैव टू प्रोजेक्ट का डेफिनेशन चूज करना पड़ेगा. मैम ने शायद बताया होगा, प्रियंका मैम ने. देन उसका डिजाइनिंग, पूरा वर्किंग, वो सब आपको डिसाइड करना है. ठीक है. देन कोडिंग यू विल बी डन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर में, आप कोडिंग स्टार्ट करोगे. तो एट दैट टाइम, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई वेबसाइट्स बना रहे हो, तो जो भी एप्लीकेशंस यू आर क्रिएटिंग, कुछ भी आप अगर बना रहे हो, तो उसमें ये सारी चीजें यू विल रिक्वायर्ड. ओके, अभी तक जो कंसेप्ट्स आपने अभी तक जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ा है इन एवरी लैंग्वेज में, जो भी आप सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में रख के प्रोजेक्ट बनाना है. इफ यू आर डूइंग प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ, अगर खुद से बनाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखना है. समझ में आ रहा है? पहले आप डिजाइनिंग करोगे, देन उसका कोडिंग कुछ करना है. तो अगर मुझे ऐसे करना है तो क्या है कंसेप्ट, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अगर याद है, दिमाग में फिट है, तो ही आप क्या कर पाओगे, यू विल डू द कोडिंग बाय योरसेल्फ. खुद से करोगे तो. एंड और सबको प्रोजेक्ट जो है वो खुद से ही बनाना है, प्लीज. ओके, किसी से फ्रेंड्स का भी नहीं लेना है, परचेज भी नहीं करना है प्रोजेक्ट, प्लीज. ओके, मेक योर प्रोजेक्ट एट योरसेल्फ, क्योंकि नाउ ये ऑनलाइन है तो ऑलरेडी आपको बहुत लॉस हो गया है. तो अगर प्रोजेक्ट करोगे, इफ यू आर डूइंग प्रोजेक्ट योरसेल्फ करोगे, आप खुद से प्रोजेक्ट करोगे, तो आपका जो नॉलेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो भी चलेगा. एंड इंडिविजुअल बनाओ, प्लीज मेक द प्रोजेक्ट इंडिविजुअली. ठीक है, आपका ये कम है 10 स्टूडेंट का, तो आई थिंक सिंगल ही बनाओ. सिंगल प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ भी बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, बट खुद से बनाओ. 4 पेजेस, 5 पेजेस, 6 पेजेस, कम होगा पेजेस बट चलेगा, बट खुद से बनाना है. यू शुड डिजाइन एंड यू शुड कोडिंग द प्रोजेक्ट जो है वो खुद से ही करना है, रेडीमेड नहीं लेना है. एंड प्लीज अभी से स्टार्ट कर दो. आई थिंक मैम ने गाइड किया होगा, यू हैव टू चूज प्रोजेक्ट डेफिनेशन. ओके, तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट डेफिनेशन दिमाग में सेट करो कि हमको क्या बनाना है. देन यू विल डिसाइड कि कौन से लैंग्वेज में आपको बनाना है. जस्ट अभी डिसाइड तो करके रखो कि हम लोग ये बनाएंगे, वो बनाएंगे. नाउ यू हैव अ टाइम, अभी इतना प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होती, यू हैव अ टाइम, तो प्लीज सर्च करो टॉपिक्स ऑन द नेट पे कि कौन से टॉपिक्स क्या क्या अवेलेबल्स है. अगर आप डालोगे तो प्रोजेक्ट्स टॉपिक्स इन फॉर आईटी या कंप्यूटर स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट द लिस्ट, एक आपको लिस्ट मिलेगा डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स का. तो देखो वो प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बना हुआ है उसको सर्च करो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हमने टॉपिक्स पढ़ा कि हाउ टू मेक एनी सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज, ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डेफिनेशन. ओके, नेट पे डेफिनेशन फाइंड करो. एंड डेफिनेशन, सपोज यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ तो शॉपिंग का वेबसाइट बनाना है. एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं कि यही करना है, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर इफ यू डिसाइडेड कि मुझे शॉपिंग का वेबसाइट बनाना है, तो आपने चूज किया. देन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का, कि जितना भी ऑलरेडी अवेलेबल है शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है, 3 to 4 जो फेमस है, उसको रिफर करो कि हाउ दे डिजाइन. ओके, उसका इंटरफेस कैसा है, उसका डिजाइन क्या है, विच टाइप ऑफ सर्विसेज दैट वेबसाइट प्रोवाइडेड टू यू. हर एक वेबसाइट्स को देखो, डिजाइनिंग कैसे किया है, लुक कैसे है, कौन से पेजेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल होम पेज पे जा रहे हो तो होम पेज पे पूरा डिजाइनिंग दिखाई दे रहा है. देन लॉगिन ऑप्शंस इज दैट, लॉगिन करने के बाद विच पेज कम्स, कौन से पेज पे आप जा रहे हो, देन आइटम्स कैसे आ रहा है. ठीक है, तो एटलीस्ट दिमाग में रखो
एक पेज पे जो है वो डिजाइनिंग करके रखो, देन आपको जो लैंग्वेज, अभी तो .NET को थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मंथ यू रिक्वायर्ड थोड़ा सा उसको टेक्निकली पूरा डिजाइनिंग सीखने में, तो एटलीस्ट इतना स्टेप्स तो करके रखो। ओके, अगर एक बार आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं आपको प्रोजेक्ट जावा में बनाना है या तो .NET में बनाना है, देन उसके बाद स्टार्ट करो कोडिंग। तो वैसे भी आप लोग इन द नेक्स्ट इसमें ही करोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे। अभी तक आपको अभी इन दिस सेमेस्टर यू हैव टू सबमिटेड, आपका जो प्रोजेक्ट जो है सबमिट करना, डिजाइन चैप्टर 4 तक, डिजाइन तक आपको सबमिट करना है, जो मैम आपको गाइड करेंगे। बट जस्ट इतना बोलूँ कि डिसाइड योर टॉपिक, क्योंकि टॉपिक डिसाइड करने में यू विल रिक्वायर 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ता आपको लगेगा डिसाइड करने में। पहले आप तो नेट पे सर्च करोगे, ओके, देन सर्च करने के बाद यस मुझे ये करना है कि वो करना है, किसी के दिमाग में कुछ और न्यू आइडिया है, ठीक है। तो जो भी करो, आई एम रिक्वेस्टिंग न्यू स्टूडेंट्स कि प्लीज जो भी करो खुद से करो। 4 to 5 पेजेस होगा चलेगा, स्मॉल एप्लीकेशंस कोई होगा चलेगा, बट प्लीज डू योरसेल्फ। तो उससे क्या होगा, आपका जो लैंग्वेज का पे जो कमांड होगा दैट विल बी गुड। ओके, तो आप जाओगे इंडस्ट्री में तो यू कैन से यस आई नो दिस लैंग्वेज, आई कैन मेक स्मॉल एप्लीकेशंस, कोई भी जो है। नाउ यूट्यूब इज यूट्यूब जो है दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी यू कैन से एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन द यूट्यूब, आपको हर एक चीज यूट्यूब पे मिलेगा। क्लियर? तो ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस, इफ लूप, जो भी कंसेप्ट है इसको लाइटली मत लो। ओके, नाउ अभी जो भी टॉपिक्स है आपको प्रैक्टिकली उसको पढ़ना है। प्रैक्टिकली यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स, वेयर वी कैन यूज दिस टॉपिक्स इन अवर प्रोजेक्ट्स। अभी से स्टार्ट करोगे सब स्टडी करना तो जाके होगा। इसलिए यू विल हैव द 1 ईयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। ऐसे ही नहीं दिया है 1 साल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए यू रिक्वायर्ड दी 1 ईयर कंप्लीटली। फॉर 6th सेमेस्टर only deciding the topics, gathering the requirements and designing and database decide करने के लिए 1 सेमेस्टर। then after designing के बाद you will do the coding। तो coding करने के लिए you will require the 1 सेमेस्टर, 3 to 4 months आपको लगता है कोडिंग करने के लिए। इसके हिसाब से स्टार्ट कर दो। क्लियर? यस और नो? अभी से वर्क करोगे तो कुछ, हाँ प्लीज, ओके। एंड डू द प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली, फ्रेंड्स को मत लो, अकेले करो। सारे स्टूडेंट्स प्लीज अकेले ही प्रोजेक्ट करो, ठीक है। ग्रुप में मत करो, 2 के ग्रुप में भी मत करो, क्योंकि एक करता है एक बाकी रह जाता है, फिर एक ऐसा लगता है नहीं वो कर लेगा, किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, देन दिस डिपेंड ऑन यू। ओके, now inheritance is clear, okay। तो we have the topics inheritance in our language, ठीक है। हमारे सॉरी हाँ सिलेबस में दिया है कि inheritance पढ़ना है, तो डिटेल्स में हम लोग इतना नहीं कवर करेंगे। जस्ट मैंने 2 टाइप्स का inheritance एग्जांपल्स आई शो यू कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेम स्पेस। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेम स्पेसेस। Okay, namespaces. What is a namespace? Anyone know what is namespace? Okay, the namespaces in C#, in C# language, namespaces are used to organize too many classes. Okay, to organize too many classes so that it can be easy to handle the applications. Okay, for example, you are creating the folder. ठीक है, आप फोल्डर बनाते हो ना, इन दैट फोल्डर फॉर एग्जांपल FI, जब यू आर इन द FI सेमेस्टर तो आपने FI सेमेस्टर का फोल्डर बनाया होगा, देन उसमें सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बनाते हो, देन उसमें यू विल स्टोर योर नोट्स। ओके, तो आपने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया। तो लाइक वैसे ही नेमस्पेस आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज टू मेनी क्लासेस। इफ यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस इन योर प्रोजेक्ट, ओके, तो यू कैन ऑर्गेनाइज दैट क्लासेस यूजिंग द नेमस्पेसेस। आप लोग नेमस्पेस थ्रू उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। In a simple C# program, we use system.console, where system is a namespace and console is the class, ठीक है। जो namespace है वो कहाँ से किसमें डिफाइन किया है, system.console हेडर फाइल में, ठीक है। To access the class of namespace, we need to use namespace.class name। Okay, for example, मैंने एक फोल्डर बनाया AWP फोल्डर में मैंने अगेन फोल्डर बनाया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, डिफरेंट फाइल फोल्डर्स बनाए। इन द यूनिट 1 फोल्डर में मैंने यूनिट 1 का जितना भी नोट्स PPTs लेक्चर्स है दैट आई एम स्टोरिंग इन द यूनिट 1 फोल्डर, ठीक
ठीक है। देन यूनिट 2 के फोल्डर में मैं क्या कर रही हूँ, जो यूनिट 2 रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह है मैं यूनिट 2 में स्टोर करूँगी, वो वाले फोल्डर में स्टोर करूँगी। तो सेम यू कैन अरेंज योर क्लासेस और यू कैन स्टोर योर क्लासेस इन द नेम स्पेसिस। अगर आपको वो क्लासेस यूज करना है ओके तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेम स्पेस डॉट क्लास नेम के विच क्लासेस यू वांट टू यूज फ्रॉम विच नेम स्पेस। ठीक है। वी कैन यूज यूजिंग कीवर्ड सो दैट वी डोंट हैव टू यूज कंप्लीट नेम ऑल द टाइम। मैं आपको बताती हूँ, ये भी स्किप करो। What is namespace? The namespace in a C# are used to organize too many classes so that it can be easy to handle the application. मतलब we can organize classes in the namespace में we can organize कर सकता है। तो as folder के जैसे उसको याद रखो namespace। Okay, this is a small example. This is a small example of the namespace का एक example है। Using system it is a header file। ठीक है, it will come by default वो आएगा, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। Then namespace, this is one namespace आपको by default मिलेगा। ठीक है, when you are opening the console application जब open करोगे तो one namespace is there by default। ठीक है, वहाँ पे एक by default होगा, already एक बना दिया होगा। But if you want to create more than one namespaces आपको बनाना है तो you can also create। तो ये जो basic first जो है the first namespace by default वहाँ पे है console application। in this namespace we have created the class। वो class का name क्या है, program। and उसमें main method किया है and then print किया है hello namespace। तो in the console application one namespace में कौन सा class है, program class। तो you can create multiple namespaces also। ठीक है, let's see another example of namespace in C# where one namespace program access another namespace programs। okay, now see this program carefully। see using system is a header file। okay, वो भी by default लिखा हुआ होगा। okay, now namespace first, this is one एक namespace है। ठीक है, one type of folder हम लोग उसको नहीं बोल सकते because ये हमारा जो है that is a programming है, तो उसको हम लोग namespace word यूज करेंगे। तो first namespace का name क्या है, first। in that namespace we have created the class। कौन सा class बनाया है, hello। and in that hello class we have making the one method, we have defining one method function say hello। वो hello function में क्या है, जब we will call this function method तो क्या डिस्प्ले होगा, hello first name। क्या डिस्प्ले होगा, hello first namespace। okay, now see यहाँ पे we are closing the brackets for this class। okay, now we have created another namespace। हम लोगों ने another namespace बनाया जिसका name दिया है second। you can give any name, आपको जो name देना you can give here। कैसे कोई नई restriction नहीं है। तो here second name is given to the second namespace। then वो namespace में again एक class define किया है hello। hello class define किया है। ठीक है, उसमें भी एक मेथड डिफाइन किया है say hello। both the names of classes and methods are same। दोनों क्लास जो है दोनों नेम स्पेस में द नेम ऑफ मेथड्स एंड नेम ऑफ क्लास आर सेम। यू कैन सी है, देखो इसका क्लास का नेम भी हेलो, ये वाले क्लास का नेम भी हेलो है, बट नेम स्पेसिस अलग अलग है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर बनाया है AWP। ठीक है, AWP फोल्डर में मैं यूनिट वन वी कैन नॉट आई कैन नॉट क्रिएट दी टू फोल्डर सेम नेम का मैं उसमें क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ अगर मैंने AWP एंड DBMS अलग अलग फोल्डर बना रही हूँ और दोनों फोल्डर में आई एम क्रिएटिंग यूनिट वन तो वो ले लेगा। ठीक है, तो सेम थिंग हियर। ठीक है, आप यहाँ पे पब्लिक वर्ड से हेलो मेथड बनाया है, अगेन उसमें पब्लिक वर्ड से हेलो मेथड बनाओगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी इज देयर। बट हियर वी आर क्रिएटिंग द मेथड से हेलो सेम मेथड नेम बट इन द डिफरेंट नेम स्पेस में सेम हेलो क्लास बनाया बट कौन से नेम स्पेस में बनाया, डिफरेंट नेम स्पेस में बनाया। ओके, तो व्हाट इज नेम स्पेस मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ द क्लासेस। ओके, और यू कैन से you can arrange classes different classes in the namespace। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि व्हाट इज नेम स्पेस। कुछ न्यू है नहीं उसमें, बट जस्ट इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर क्लासेस, अगर मल्टीपल क्लासेस है आपके प्रोग्राम में तो यू कैन अरेंज योर क्लासेस लाइक दिस। ओके, इसमें कुछ इतना लॉजिक नहीं है, जस्ट वन टाइप ऑफ उसका ऑर्गेनाइजर, आपको उसको जो क्लासेस को अरेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग फोल्डर में अलग अलग डिफरेंशिएट करके रखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे FY का मेरा फोल्डर है, मेरा जो सारे नोट्स है SY का वो SY के उसमें रखा है। अगर इफ यू आर मेकिंग वन फोल्डर, एक फोल्डर में अगर बहुत सारे नोट्स बनाओगे हर एक चैप्टर्स का, हर एक सिलेबस हर एक सब्जेक्ट आप एक ही उसमें डाल रहे हो, हर एक सेमेस्टर का बुक आप एक ही फोल्डर में डाल रहे हो, नोट्स एक ही फोल्डर में डाल रहे हो, तो यू विल गेट कंफ्यूज बाद में कि ये क्या था, ये मैंने क्या बनाया। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यू आर मेकिंग दी डिफरेंट फोल्डर्स। तो सेम
डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस है वो क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यू कैन मेक द नेम स्पेस. ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी. ओके, यहाँ पे अनदर क्लास मेन क्लास बनाया. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यू कैन डायरेक्टली राइट द मेन. हर एक बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आप नेट पे प्रोग्राम देखोगे तो अगर किसी जगह पे दिखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डायरेक्टली है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दी डायरेक्टली. वी कैन ऑल्सो राइट दी डायरेक्टली. ओके, इसलिए मैं हर एक आपको रिपीट कर रही हूँ. ये सारी चीजें याद रखनी है आपको. ओपन दी ब्रैकेट, देन क्या किया यहाँ पे फर्स्ट. ओके, दैट इज अ नेम स्पेस. ये क्या है? नेम स्पेस है. ठीक है, स्टूडेंट्स प्लीज रिजॉइन करना. ठीक है, रिजॉइन करो. ये कंसेप्ट टुडे वी विल कंप्लीट. हम करते हैं नेम स्पेस का. रिजॉइन करना. ओके, फर्स्ट इज द नेम ऑफ द नेम स्पेस डॉट hello. Hello is a class name and h1 is the object. H1 is the object of hello class. H1 is the object of hello class, but that class belongs to which namespace? First namespace. Okay, here we are creating the object. H1 is the object of the hello class equals to new first dot hello. Then here we are creating the object of hello class, but that class is belong to second namespace. First namespace में है वो क्लास, सेकेंड नेम स्पेस में उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है. ओके, देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कॉल द मेथड्स ऑफ बोथ द नेम स्पेस का. तो h1 डॉट से हेलो, h2 डॉट से हेलो, बट बोथ दिस मेथड्स